Good morning, students. I hope you are well and good at your home and enjoying your life with your parents. I would like to continue your topic in civics, that is the role of the Constitution. And topic was running fundamental rights. Yesterday I had taught to you what are fundamental rights and how many fundamental rights you have. You can see there are 6 fundamental rights you have. Yesterday I had taught to you about the right to equality. You have equality in 4 ways and you have freedom in 10 subjects. Already I taught to you these 2 rights yesterday or in previous video. Now you can see third right is, that is right against exploitation. We have to study today right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and last but not least, right to constitutional remedies. It means we have to study remaining 4 rights. 2 rights already I taught, that is right to equality and right to freedom. Now we should know about right against exploitation. We have to study right against exploitation. Exploitation in Hindi called शोषण. First of all you should know kind of शोषण, type of शोषण. It is running since long periods of time in the world. मनुष्य एक दूसरे का शोषण करता आ रहा है. तो we have to study first of all, हमें ये जानना है शोषण कितने प्रकार का. तो commonly there are 3 types of exploitation. These are physical, mental and economical. कॉमनली देर आर, ऐसे तो बहुत तरह के शोषण हैं, लेकिन ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कम्स अंडर 3 मेन हेडिंग्स. दीज आर द कॉमन काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक. ये प्रमुखतया यहीं से मनुष्य का शोषण होता है. कीपिंग दिस ऑब्जेक्टिव, the constitution maker
गिवन प्रोविजंस अगेंस्ट इट। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये इसके लिए आपको प्रावधान और राइट दिया है। एंड इट इज essential to all. You should know in detail, especially खास करके यंग बच्चों को ये जानना बहुत ही कंपलसरी है। You should know because knowingly or unknowingly you can be exploited at anywhere, so that you should be always aware from it. तो आइए अब सीखेंगे कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, उसको जानेंगे। जस्ट आपने देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आई टोल्ड टू यू देयर आर 3 types of exploitation and it is totally restricted in our constitution, through our constitution. Restriction is, you can see, prohibition of traffic in human beings and forced labor. You may see or you can know slave or bonded labor. It was in practice in our society, but the constitution has banned it. हमारे संविधान ने इसको प्रतिबंधित किया, यानी किसी को बाजबरन हम अपने यहाँ फिजिकली वर्क नहीं करा सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी यह पुअर स्टेट में, गरीब राज्यों में यह चोरी छुपे हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इट मीन्स आपको किसी चीज का प्रलोभन देकर someone attracted to you and you will be sold in the metro cities area। देखते होंगे गरीब घर के बच्चे को वाला फुसला कर एजेंट लोग ले जाते और उसे मेट के रूप में या अदर वर्कर के रूप में उसे बेच देते। इट इज प्रोहिबिटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट prohibition of traffic in human beings and forced labor. Human traffic, it is one of the social problems. Next, prohibition of employment of children below the age of 14 years in any place. For best example, यानी कि छोटे बच्चों का एज जो है वह तुम्हारा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ का एज है, इसलिए 14 इयर्स से कम एज वाले बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। आप देखोगे जब जॉब के लिए जाओगे तो मिनिमम एज इज रिक्वायर 18 इयर्स, इट इज फिक्स्ड एंड मैक्सिमम आल्सो इज फिक्स्ड। तो सो दैट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन फैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जाम्पल विथ यू। मैं तुम्हारे जीवन पर्यंत से उदाहरण और एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप जाते हो होटल और रेस्टोरेंट, यू विल सी, वहाँ क्या देखते हो, बहुत बड़े स्टिकर में आपको लिखा मिलेगा कि यहाँ 14 वर्ष से बिलो 14 इयर्स के बच्चे काम नहीं करते। भले वहाँ छोटे बच्चे मिल रहे हो, आपको काम कर रहा है, वेटर का काम कर रहा है या प्लेट धोने का काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से बचने के लिए वहां देखो लगा हुआ रहता है कि
आप अब जाओगे, नहीं तो माइंड करना कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, होटल में जाओगे, तो वहाँ काउंटर के पास या बड़े बड़े इन फ्रंट और कॉमन प्लेस पर वहाँ लगा हुआ मिलेगा कि हम चाइल्ड लेबर नहीं रखते। तो इट इज पॉसिबल ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल restriction, that is called prohibition of employment of children below the age of 14 years in any place। यानी 14 वर्ष के बच्चे को कहीं भी रोजगार के रूप में किसी भी पर्पस में आप यूज नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, हाँ, बिकॉज बच्चों का एज है, हाँ, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ का टाइम है। इसलिए कीपिंग दिस ऑब्जेक्टिव the constitution had given such facilities, such right to all the children of India. Then you should know, if someone is doing with you, you should know someone is exploiting to you. Therefore it is more beneficial, especially for the young child age. Okay. Now I would like to discuss about the fourth fundamental right, that is right to freedom of religion. Right to freedom of religion. It is your fourth fundamental rights. So I would like to explain. You know, and you already learned, India is a secular country, and I had explained the fact of secularism. मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था। What does it mean? कि यहाँ भारत में किसी भी धर्म को विशेष प्राप्त नहीं। इट मीन्स यू हैव टू राइट एनी रिलीजन एज पर योर डिजायर, एज पर योर चॉइस। यानी आप अपनी इच्छा से, अपने सुविधा अनुसार किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। जैसे देखोगे, आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जाम्पल विथ यू। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत बड़े स्कॉलर थे और प्रीवियसली वो हिंदू रिलीजन्स थे, हिंदू फॉलोवर थे, लेकिन लेटर ऑन दे फॉलोड द बौद्धिज्म। उसी तरह आप इतिहास देखोगे, अशोका, द किंग ग्रेट अशोक क्या थे? हिंदू धर्म को मानते थे, बट आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा दे कन्वर्टेड देयर रिलीजन एंड दे बिकेम बौद्धिस्ट। They follow the Buddhism. It means you have right to opt any religion as per your choice or desire. Just I told to you about the right of freedom of religion में मैं बताया कि you are free to opt any religion as per your choice. आप देखोगे यहाँ freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate any religion. Propagate any religion. What does it mean? It means you are free of conscience, स्वीकार करना, and right to profess. Profess का मतलब भी accept और जानना। यानी अगर तुम बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हो, यू आर फ्री टू नो अबाउट इट। प्रैक्टिस यानी उसके रिचुअल्स को, उसके मेथड को, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हो, यू आर। एंड प्रोपगेट का मतलब प्रचार करना। यानी आप किसी धर्म का प्रचार करना चाहते हो, प्रसार करना चाहते हो भारत में, so you are free, but it should be in legal way as per the constitutional or Indian Penal Code। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान, भारतीय कानून संहिता के अनुसार
आपको ये फ्रीडम प्राप्त है। जैसे अभी देख रहे हो हमारे यहाँ इतना वो कोविड-19 नहीं होता अगर जमाती लोग, ये धर्म के प्रचारक जो इस्लाम धर्म के प्रचारक थे, अगर वो इस एक साथ इकट्ठे नहीं होते तो तबलीगी जमात के लोगों ने आज मोर देन 50% कोविड इसके थ्रू हुआ। तो यह अधिकार उनका है, उनका था, इसके लिए वो कर रहे थे। वो अपने धर्म का प्रचार करने में फ्रीडम फ्रीडम है उनको। उसी तरह you can explain, you can view, you can propagate any religion as per your choice. Number 2, freedom to manage its own affairs in matter of religion. यानी आप अपने ढंग से, अपने व्यवस्थित ढंग से किसी भी धर्म का अफेयर, किसी धर्म के रिलीजन को मैनेज कर सकते हो। इट इज योर। अब देखते होगे कि बहुत सारे धर्म में बहुत सारे वेलफेयर वर्क किए जाते हैं। इट इज योर ड्यूटी। जैसे देखोगे गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ लंगर की व्यवस्था होती है। व्हाट इज मीन? ये उसके धर्म का कॉन्सेप्ट है। कोई भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग वो लंगर खा सकते हैं, वहाँ जाते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? तो जो लोग कर रहे हैं, दिस इज द। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज द स्टेट विल नॉट collect any taxes for promotion of any religion। ये छोटा है लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्यों? कि द स्टेट विल नॉट कलेक्ट, यानी कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश, कोई भी क्षेत्र कोई टैक्स नहीं वसूलेगा। किस लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी धर्म के प्रचार के लिए और धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए कोई भी राज्य सरकार किसी तरह का टैक्स आपसे नहीं वसूलेगी। इट इज योर फंडामेंटल राइट। वही कह रहा है, द स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब प्रचार प्रसार करना, ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए आपसे किसी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इट इज टोटली फ्री। आप देखते हो, जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ इतने धनी मंदिर हैं जो भारत को अगर वो सारा अपनी संपत्ति डोनेट कर दे तो भारत आज भी, भारत की इकोनॉमिक स्थिति काफी अपग्रेड हो सकती है। देखोगे जैसे शिरडी साई में, तिरुपति बालाजी में अरबों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। और जैसे तुम्हारे स्टेट में भी जाके देख लो, देवघर है, रजरप्पा है, भद्रकाली है, तो वहाँ बहुत सारे कलेक्शन होते हैं और उस पर कोई भी गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं अप्लाई करती। तो दिस इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये फोर्थ फंडामेंटल राइट था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फिफ्थ और सेकेंड लास्ट फंडामेंटल राइट। That is very simple and easier. I will not take much time in it. That is the fifth. That is the fifth. That is cultural and educational rights. Cultural. What does it mean, culture? It means India is a land of diversity, but we have unity. It means unity in diversity. इसका मतलब हुआ कि हमारे वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, these are quite different. यह काफी डिफरेंट है, लेकिन आप जैसे चले जाओ पंजाब तो उसका खान पान, उनका वेशभूषा, उनका रिचुअल्स
अलग है, राजस्थानियों का अलग है, गुजरातियों का अलग है, बिहारी का अलग है, झारखंडी का अलग है, वेस्ट बंगाल का कल्चर अलग है। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी दिस इज द योर फंडामेंटल राइट एंड वी कंटिन्यू इट्स रिचुअल एज पर आवर फैमिली, एज पर आवर रिलीजन। इट इज योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। बट कह सकते हो it has been especially focused for the minorities group. Minorities means, it means, I would like to say, out of total population of India, 80% are the follower of Hindu religion. जितने लोग भारत में रहते हैं उसमें अधिकांश लोग, near about 80% is the follower of Hindu religion. रेस्ट 20 को सप्रेस ना कर दे। रेस्ट 20 में कौन है? क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं। ये 5 रिलीजन, ये दीज आर कॉल्ड माइनॉरिटीज फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू देम। अदरवाइज क्या होता कि मेजोरिटी ग्रुप उस पर हावी होता, डोमिनेट कर जाता और उसका अस्तित्व ग्रेजुअली समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसी नहीं है। जब हिस्ट्री पढ़ोगे, यू विल स्टडी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी कितनी थी और आज कितनी हो गई, ड्यू टू दिस राइट। यानी कि वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और स्पेशली फॉर द माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप के लिए तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में बताया कि योर, जस्ट यू कैन सी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज, ऑलरेडी आई told to you who are minorities. It means non-Hindu religious followers, non-Hindu follower, यानी जो हिंदू धर्म को नहीं मानते उनकी संख्या कम है। मैं बताया अभी आपको, आई टोल्ड टू यू कि आउट ऑफ 6 मेजर रिलीजन अपने देश में हैं, ऐसे 7 भी हैं, कुछ पारसी भी हैं, लेकिन तो 7 मान के चलो, 7 में से 1 इज मेजोरिटी एंड रेस्ट 6 आर माइनॉरिटीज। उसी को माइनॉरिटी, दोज आर नॉन हिंदू पीपल आर कॉल्ड माइनॉरिटी। The protection of interest of minorities, it means their interest, उनके धर्म के लिए। इसलिए देखोगे, you will observe that you celebrate Eid and government permit or granted national holidays for them। उसी तरह क्रिसमस में भी तुम्हें नेशनल हॉलीडे मिलता है। What does it mean? It is a kind of protection. We participate protection. And another thing is right to minorities to establish institution of their own. If any minorities want to set up their educational institution, they can set up. आप देखोगे जब हायर क्लास में जाओगे, हायर इंस्टीट्यूशन में जाओगे, बहुत सारी जगह में माइनॉरिटीज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज आपको मिलेंगे, वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड, जैसे CMC वेल्लोर, वह क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन। तो वहाँ क्या है, वह क्रिश्चियन की धर्म के फॉलोवर के लिए कुछ सीटें रिजर्व है, मोर देन नियर अबाउट 50%। उसी तरह मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज मिलेंगे, उसी तरह जैन माइनॉरिटीज कॉलेज मिलेंगे। इट मीन्स हिंदू को छोड़कर बहुत सारे ऐसे, तो ये राइट है उनका, दे कैन सेट अप देयर इंस्टीट्यूशन ऑन देयर लेवल फॉर प्रमोटिंग देयर कॉन्सेप्ट एज वेल एज देयर डेवलपमेंट। तो कर सकते हो सर ऐसा क्यों? ताकि उसका उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इट वॉज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नाउ I would like to discuss last but not least, that is the right of right.
छठा जो पढ़ने जा रहे हैं वह जो है वह सबसे बड़ा राइट है। आई वुड लाइक टू डिस्कस इट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल remedies. In fact, you have only 5 rights, and it is the protective of all 5 rights. Right to constitutional remedies, यानी संवैधानिक उपचार। If out of 5 rights anyone have been violated by someone, अगर ये जो आपके 5 अधिकार अभी तक आपने पढ़ा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो 5 राइट्स आपने पढ़े, इन 5 में अगर आपका कोई राइट्स वायलेट होता है तो आपको संविधान उसके लिए प्रोटेक्शन देगी। आपको ये राइट्स 5 राइट के वायलेशन से आपको बचाएगी। दैट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अब ये मैं आई वुड लाइक टू डिटेल इट, मैं इसको डिटेल में करना चाहूँगा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। इन फैक्ट देयर इज ए हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन आवर कंट्री। हमारे संविधान और जुडिशियरी सिस्टम में एक व्यवस्था है, क्रम है। क्रम क्या है कि आपको अगर कोई ग्रीवांसेज या कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे लोअर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब कोर्ट में पहले आप केस फाइल करेंगे। वहाँ के जजमेंट से सहमत नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। वहाँ के से सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट के जजमेंट से आप सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। इट इज ए हायरार्की, इट इज एन हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन आवर कंट्री। हमारे देश में यह न्याय की एक व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली वी कैन नॉट लॉज और रिट इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट। इट मीन्स अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, यू हैव टू राइट थ्रू दिस राइट दैट यू कैन लॉज कंप्लेन रिट डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स। देखो कितना बड़ा अधिकार है। इसे दूसरे केस में आपको 20 वर्ष लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, 15 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से तुरंत इमीडिएट तुम जा सकते हो और उसका फैसला भी फास्ट ट्रैक में और इमीडिएट होगा। तो यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी को हम लोग कहते हैं constitutional remedies. It means if a citizen feels that one of his rights has been violated by an executive order, he / she may request the Supreme Court or High Court directly. मैं जैसा कि बताया कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते एक्सेप्ट आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं हो, यानी आपको कहीं इक्वलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपके फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके रिलीजन का वायलेशन हो रहा है, आपके कल्चरल राइट का वायलेशन हो रहा है, किसी तरह का ये जो 5 फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाया
जो पढ़ा है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये जो राइट्स आपको मिले हुए हैं, अगर इसमें कहीं भी वायलेशन है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हर स्टेट का हाई कोर्ट बटा हुआ है, आगे सिविक्स में पढ़ोगे, हर स्टेट्स का हाई कोर्ट बटा हुआ है। तो वहाँ जैसे तुम्हारे झारखंड का हाई कोर्ट रांची हाई कोर्ट खुद है, तो रांची हाई कोर्ट में आप इससे रिलेटेड मैटर प्रत्यक्ष रूप से, नहीं तो कोई भी तुम्हारा शिकायत है, कोई भी मुकदमा है तुमको, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। वहां रांची नहीं पहुंच सकते प्रत्यक्ष रूप से। एक्सेप्ट यही कहता है कि इफ ए सिटीजन feels that one of his rights has been violated by an executive order, किसी तरह से उसे प्रतीत होता है, he she may request the Supreme Court or High Court directly. What की? And the Supreme Court and High Court. अब क्या करेगा Supreme Court and High Court? Supreme Court and High Court उसकी ऑर्डर को High Court to issue the appropriate writ for restoration of his and her right. और तब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? ऑर्डर करेगी इनके मौलिक अधिकार की रक्षा, यानी सरकार को अधिकार ऑर्डर देगी, आदेश देगी कि इनका अधिकार रिस्टोर किया जाए तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट से। अगर आप प्रूफ, लेकिन यू हैव टू प्रूफ इन द कोर्ट हाउ योर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, यानी आपको कोर्ट में प्रमाणित करना होगा कि आपका अधिकार कैसे वायलेट किया गया। तो आपको कोर्ट जो है अप्रोप्रिएट रेट रिस्टोरेशन, आपके अधिकार को रिस्टोर करने के लिए, रिटर्न करने के लिए तुरंत सरकारी कदम, तुरंत सरकारी ऑर्डर आपको दिए जाएगा और आपको तुरंत मिल जाएगा अधिकार। तो देख लो, इट वॉज योर फंडामेंटल राइट, यू शुड नो इट, आपको जानना चाहिए ताकि आप इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे अभी देखो लेटेस्ट इवन न्यू, आई वुड लाइक टू शेयर, डू यू नो में दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप जो है किसी भी गवर्नमेंट से किसी भी खर्च का, किसी भी के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो। ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपका फंडामेंटल राइट था, इसको अच्छे से उम्मीद है कि आप पढ़ोगे। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो जब वीडियो वॉच करोगे तो आप मुझे रिटर्न बैक, रिप्लाई बैक करोगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब वीडियो देखते हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट, मेरा भी फीलिंग और ज़्यादा तुम्हारे प्रति आकर्षित हो और अधिक से अच्छे मैं ऐसे तो प्रयास कर रहा हूँ कि बेटर क्वालिटी देने का, लेकिन इसके बावजूद भी और कहीं अगर कोई एडवाइस हो तो यू कैन गिव। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंप्लीट अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो, यानी और उम्मीद करता हूँ कि 2 वीडियो इससे रिलेटेड, यानी 9 पार्ट में इस चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इसलिए उम्मीद है कि 9 चैप्टर यानी 9th वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इट इज ए 7th वीडियो। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।